Greetings, students. I hope you're all doing well. Hi, this is Shaktoki Chakraborty from Indraprastha Law College, Greater Noida, and today's subject is human rights. And the topic that we are going to discuss is United Nations and the human rights. And this is the part 2 of the video that was uploaded in the last class. And this is meant for BLLB 4th sem students. Students, in the last class, we have already discussed about the connection of human rights with United Nations, how United Nations has played a very dominant role in promoting human rights through economical, social, and every forms of facets, and how their bodies are comprised of, and how all these bodies of human rights, all these organizations of human rights have played a very significant role in promoting human rights itself. So let us take a look at the UN Commission or United Nations Commission on Human Rights. UN Commission or ECOSOC is made of 53 members, and the UN Commission on Human Rights initiates studies and fact-finding missions and discusses specific human rights issues. It has the responsibility for initiating and drafting human rights declaration and convention. तो ECOSOC की काम क्या है? ये 53 मेंबर्स से बना हुआ है और इसका मेन जो मॉडस ऑपरेंडी या मोटिव है वो है फैक्ट फाइंडिंग मिशंस कि कहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, कहाँ पे इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट चाहिए, कहाँ पे मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, जो कुछ भी है ह्यूमन राइट्स से कनेक्टेड, तो ये लोग फैक्ट फाइंडिंग मिशन करते हैं एंड स्पेसिफिक जो ह्यूमन राइट्स इश्यूज है उनके ऊपर भी ये लोग एम्फेसाइज करते हैं कि उसमें भी कैसे ये लोग डेवलपमेंट ला पाए, कैसे ये लोग काम कर पाए कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो वो इफेक्टिव फैसिलिटीज़ का, कि ह्यूमन राइट्स को ह्यूमन राइट्स प्रिवेल हो. So it has responsibility for initiating and drafting human rights declaration and conventions. So it has its sole responsibility of initiating all those provisions and laws connected to human rights declaration and conventions itself. Secondly, ECOSOC also supervises intergovernmental organizations. आप लोगों ने लास्ट क्लास में देखा कि इकोसॉक के अंडर काफ़ी IGOs है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, और इकोसॉक इज द मदर बॉडी विच टेंड्स टू एडमिनिस्टर all these IGOs underneath it. So IGOs are specialized agencies that function independently. IGOs independently function करते हैं और इनका खुद का बजट है, इनका खुद का चार्टर है, और जो कुछ भी स्टाफ है जो एफिलिएटेड है UN के अंडर, वो स्पेशल एग्रीमेंट से उनको ये बॉडी में इंडक्ट किया जाता है. IGOs डायरेक्ट रिपोर्ट इकोसॉक को करते हैं और जो भी रिपोर्ट और रिव्यूज बनाते हैं of certain UN bodies that are relevant in the areas of focus itself. Now let us take a peek at the Intergovernmental Organization Protecting Human Rights. Firstly, International Labour Organization or ILO. ILO develops international labor standards and provides technical assistance training to government. तो ILO का काम क्या है? To develop and to modify international labor standards, कि वर्किंग क्लास के लिए, लेबर्स के लिए या एम्प्लॉयर्स या एम्प्लॉई के लिए जो भी इंटरनेशनल वर्किंग स्टैंडर्ड होगा वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा वर्किंग स्पेस में. और टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं ILO, और वो टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट को टू ट्रेन दिस एम्प्लॉयज इटसेल्फ. सेकेंडली, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड UNICEF. UNICEF works with other UN bodies, government and non-governmental organizations to provide community-based service in primary health care, basic education, safe water and sanitation for children in developing countries. So, UN काफ़ी NGOs के साथ, गवर्नमेंटल बॉडीज के साथ, इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता है. कैसे? टू प्रमोट कम्युनिटी बेस्ड सर्विस. कम्युनिटी बेस्ड सर्विस जो है, जैसे आप प्राइमरी हेल्थ केयर की बात करो, बेसिक एजुकेशन की बात करो, सैनिटेशन, सेफ वाटर की बात करो, चिल्ड्रन की अपलिफ्टमेंट की बात करो, इन डेवलपिंग कंट्रीज इनको अपलिफ्ट करने के लिए, ये कंडीशन को बेटरमेंट के लिए, सोसाइटल वेलफेयर के लिए यूनिसेफ काम करते हैं और ह्यूमन राइट्स को प्रिवेल किया जाता है. थर्डली, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन. यूनिफेम का मेन काम है वुमेन एम्पावरमेंट. आप लोग को काफ़ी पता है ह्यूमन एम्पावरमेंट के बारे में. तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फॉर फंड फॉर वुमेन जो है, इट प्रमोट्स इकोनॉमिक एंड सोशल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. हर तरीके का जो एम्पावरमेंट है, अपलिफ्टमेंट है फॉर वुमेन और लेडीज़ और गर्ल्स इटसेल्फ, इनके लिए यूनिफेम कार्य करता है. सो
In the developing countries, it tends to promote economic and political empowerment of women, and it also ensures that their participation in developing planning and practices as well as the human rights, कि women की जो human rights है वो violate ना हो, वो कोई आर्बिट पावर की कोई शिकार ना हो, और thirdly उनका empowerment हो, जो भी कुछ rights है, be it political, be it social, be it cultural, be it economical, social, हर तरीके का जो rights है women enjoy कर पाए और वो एंटाइटल्ड हो एंजॉय करने के लिए, उनका ह्यूमन राइट्स उनसे छीना ना जाए, उनका जो फंडामेंटल राइट्स है वो छीना ना जाए, और वो एंजॉय कर पाए इक्वली विद द मेन in the society itself. So UNIFEM's main modus operandi or motive is to promote the equality in human for women itself in the society, and at the same point of time for the betterment or the welfare of women in the developing countries itself. Then we tend to see is United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, or UNESCO. So UNESCO pursues intellectual cooperation, education, science, culture and communication, and promotes development through social, cultural and economic project. तो यूनेस्को का काम क्या है? यूनेस्को इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन या इंटेलेक्चुअल अपलिफ्टमेंट लाता है, और इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन, इंटेलेक्चुअल अपलिफ्टमेंट कहाँ पे लाएंगे? एजुकेशन, साइंस, कल्चर, कम्युनिकेशन, और इस हिसाब से ये जो अपलिफ्टमेंट लाते हैं या फिर डेवलपमेंट लाते हैं, जो मॉडिफिकेशंस लाते हैं ये सब फील्ड में, कल्चर में, एजुकेशन में, साइंस में, कम्युनिकेशन में, इससे ये लोग सोशल, इकोनॉमिकल और इकोनॉमिक कल्चरल डेवलपमेंट लाते हैं और प्रमोट करते हैं. तो हर तरीके का डेवलपमेंट चाहिए, खाली आप सोसाइटल डेवलपमेंट की बात करोगे तो नहीं होगा, इकोनॉमिक भी डेवलपमेंट चाहिए, कल्चरल डेवलपमेंट चाहिए, पॉलिटिकल डेवलपमेंट चाहिए, क्योंकि हर तरीके का अगर डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा, तभी एक कंट्री एक प्रोग्रेसिव कंट्री बनेगा, उनका हर फील्ड में डेवलपमेंट होगा. तो यूएन ये ध्यान रखते हुए कि हर एक फील्ड में ये लोग फोकस करते हैं, वो कल्चरल हो, सोसाइटल हो, इकोनॉमिक हो, वुमेन अपलिफ्टमेंट हो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो, सैनिटेशन हो, जो कुछ भी है, हर व्यक्ति के लिए इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर और फॉर द किड्स इटसेल्फ यूएन काम करते हैं. Lastly, we tend to see is World Health Organization or WHO, who conducts immunization campaigns, promotes and coordinates research, and provides technical assistance to countries that are improving their health system. So, World Health Organization plays a very imperative and dominant role in conducting immunization campaigns in the developing countries. ये जो टीका है हर तरीके का, हर डिजीज़ के लिए इम्यूनाइजेशन कैंपेन्स ये लोग कंडक्ट करते हैं, रिसर्च, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में कोई ये लोग कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट करते हैं, एंड टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं टू इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशंस ऑफ पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड. अभी आप लोग को पता ही है कि कोविड-19 पैंडमिक में हु प्लेड अ वेरी डोमिनेंट रोल. They are trying their level best to eradicate the problem, the pandemic that we are facing worldwide, and who also plays a very imperative role in eradicating all the terminal diseases and improving the condition of healthcare facilities or medical assistance in every country, be it developed, underdeveloped or developing. Now let us focus on the other UN bodies and human rights. The UN Security Council comprises of 15 member states, is responsible for making decisions regarding international peace and security. So UN Security Council जो है ये 15 मेंबर से बना हुआ है, और इनका मेन काम है टू टेक प्रॉपर डिसीजन रिगार्डिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी प्रमोट हो और ह्यूमन राइट्स प्रिवेल हो. It can make recommendations and decisions for action, including providing humanitarian aid, imposing economic sanctions, and recommending peacekeeping operation. Security Council has been responsible for establishing international tribunals to prosecute serious violations of humanitarian law. तो यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है इनका बहुत एक इम्पोर्टेंट काम है, बिकॉज ये प्रॉपर रिकमेंडेशंस और डिसीजंस लेते हैं, और वो इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं लॉ की जहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेट होता है. और ह्यूमन राइट्स जहाँ पे वायलेट हो रहा है ये लोग ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करते हैं या फिर हेल्प प्रोवाइड करते हैं, बी इट
economically, be it socially, or be it in other levels. For example, कहीं पे भी अगर ह्यूमन राइट्स की भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस है, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ये भी देखते हैं कि कहीं पे भी अगर कोई भी एट्रॉसिटीज़ हो रहा है, मास एट्रॉसिटीज़ हो रहा है, ये लोग एक्सट्रीम स्टेप भी लेते हैं, ट्रूप्स भी भेजते हैं कि पीस और सिक्योरिटी बना रहे हैं, और पीस कीपिंग ऑपरेशंस भी करते हैं ये लोग. तो पीस कीपिंग ऑपरेशंस की जब बात करोगे तो वी विल टॉक अबाउट मे बी अ वॉर, मे बी अ जेनोसाइड और एनी एट्रॉसिटीज़. So, the Security Council has been responsible for establishing international tribunals to prosecute serious violation. कहीं पे भी अगर सीरियस ह्यूमन राइट्स वायलेट हुआ है, ये लोग इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल भी फॉर्म करते हैं, जहाँ पे लीगल स्टेप्स लिया जाता है, जहाँ पे केस चलते हैं, और जो कोई भी व्यक्ति हो जो ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन एक्सट्रीम लेवल पे किया है, उनको भी लॉ से ट्राई किया जाता है, लॉ उनके ऊपर एग्जीक्यूट किया जाता है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है जहाँ पे ये केसेस चलते हैं, और जो व्यक्ति है, जो मास है जिनका ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, जस्टिस भी मीट आउट किया जाता है. For example, special tribunals have been set up to prosecute war crimes in former Yugoslavia and acts of genocide in Rwanda. तो आप लोगों को काफ़ी पता है कि अफ्रीका बोलिए, आप यूगोस्लोविया बोलिए, रवांडा की बोलिए, यहाँ पे काफ़ी जेनोसाइड होता है. और जेनोसाइड मतलब ह्यूमन राइट्स वायलेशन थ्रू वॉर, जहाँ पे मास किलिंग होता है, जहाँ पे वॉर के कारण बहुत मतलब एक मास मर्डर होता है, जैसे नाज़ी जर्मनी में भी ज्यू का हुआ था, हिटलर ने किए थे ज्यू हॉलोकास्ट. तो ये सब जेनोसाइड के अंदर आता है. अगर ऐसे ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जाएगा, जहाँ पे आप लोगों को पता है 2014 में सीरिया में भी हुआ था, वह दे एग्जीक्यूटेड जस्ट फॉर देयर ओन रिसर्च फैसिलिटी, केमिकल बॉम्बिंग किया गया था, और बहुत इनोसेंट बच्चे, बुरे, बहुत लोग को मारा गया था. तो दीज आर ऑल काइंड ऑफ जेनोसाइड दैट टेंड्स टू ऑकर in several countries itself. तो अगर ऐसे कोई सिचुएशन होता है, यूएन सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट स्टेप लेते हैं, और जो व्यक्ति को पाया जाता है गिल्टी, उनको लॉ के अंडर इम्प्लीमेंट किया जाता है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वो एडिक्वेट स्टेप लेते हैं. So, the Secretariat is the administrative arm of the UN, responsible for overseeing the programs and policies established by the other UN organization. The position of UN High Commissioner on Human Rights, currently held by Mary Robinson, the former President of Ireland, is part of UN Secretariat. The Secretariat is another administrative body of UN which is responsible to see whether all the programs and all the policies connected to UN are functioning properly or not. क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो सेक्रेटेरिएट है, जो ये देखते हैं कि जो भी लॉस को इम्प्लीमेंट किया जाता है, जो भी पॉलिसीज़ है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो भी प्रोग्राम्स है, विच इज़ इनिशिएटेड एंड विच इज़ क्रिएटेड बाय द यूएन इटसेल्फ टू अपलिफ्ट ह्यूमन राइट्स इन एवरी फील्ड पॉसिबल, उनको प्रॉपरली वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, और इनको देखने में और इनका एडमिनिस्टर करने में, इनको चलाने में सेक्रेटेरिएट हेल्प करते हैं. और सेक्रेटेरिएट का मेन काम है एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म ऑफ द यूएन. सो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये प्रोग्राम्स, ये पॉलिसीज़ या जो फैसिलिटीज़ है कि वो फैसिलिटीज़ से ह्यूमन राइट्स प्रिवेल हो, उनको प्रॉपरली एडमिनिस्टर करना, उनको देखना. सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूएन एंड ह्यूमन राइट्स. थैंक यू क्लास.